welcome back in my new YouTube channel which is named as Sasram Twilight. I am Sumit Kumar Goswami, the director of Sasram Twilight, and today we are going to discuss about the chapter 1 of class 9 which is named as The Fun They Had. The Fun They Had been written by one of the great American writer and the professor of biochemistry who was studying or who was teaching at Boston University. He used to write hard science fiction, and this story was published first in 1st December 1951, then reprinted in 1954. Just have a look over the brief introduction in the first page, and there are some picture diagrams also available in that first three stanzas, which is set in the future. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. And there is the diagram which you are looking, and in the second line it's saying that in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your schools that you would like to change. Write them down. And in the third stanza, it is saying that how you- sorry, have you ever read words on television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and then there will be no books printed on paper? Would you like such books are better? According to the poet, sorry, according to the author of the story, who is saying that this story has been presently based in the future track, and he had written this story only for the future. And in this story, it is saying that the books, the teachers, the students, and the bags which we see in our classroom right now and day to day life, it is known as the physical books or the physical activities that we do in the schools. But when there will be the future, then we have to arrange the robotic teachers, and the whole system is running about the screen, and on the screen the study is running. And and how the study is running on the schools, and it's based upon the screen system. Let's find out. Let's have a look on the story, and the story begins with a first point of the story. Let's begin right now. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 21st 57, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यहाँ पे एक मार्जी नाम का एक कैरेक्टर है जो अपनी डायरी पे हेडिंग लिखता है 17 मई 2157, और उस दिन वो उसने लिखा हुआ है कि आज के दिन टॉमी ने एक बहुत ही सच्ची किताब ढूंढी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जी के ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने उसे बताया कि जब वह छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ पेपर के ऊपर छपी होती थी। दे टर्न्ड द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। उन लोगों ने पन्ने को
पलटा, जो कि पीले हो चुके थे और बहुत ही मुड़ गए थे। क्रिंकली का अर्थ हो गया मुड़ना, ठीक है। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और वो लोग वही शब्द देख रहे थे कि जो शब्द थे वह एक ही जगह पे आराम से विश्राम कर रहे थे, ना कि स्क्रीन पे जैसे कि जो शब्द इधर से उधर भागते हैं वो नहीं हो पा रहा था जैसा वो चाह रहे थे। And then, when they turned the back to the page before, it had the same words on it that it had when it read it the first time। जब वो पन्ने को पीछे की तरफ पलटते हैं तो वही वर्ड उसी जगह पर उसी स्थान पर रहा करते थे जिस जगह पे वो पहले हुआ करते थे। इसके पहले पॉइंट में तो हम लोगों ने ये देखा कि एक मार्जी नाम का लड़का है, वह अपने डायरी को खोलता है और उस पर 3 जनरेशन्स यानी कि थर्ड उसके दादा के दादा, यानी कि पहला जो जनरेशन होता है आपके दादा और उनके भाई बहन, ठीक है। उसके बाद उनसे जब आपके पिताजी हुए, आपके अंकल्स हुए, वो सेकेंड जनरेशन हुए, और उनसे पैदा होने वाले आप जो है वो थर्ड जनरेशन्स कहलाते हैं। अब इस तरह से फर्स्ट रूप समाप्त होता है। अब हम सेकेंड लाइन में देखते हैं कि टॉमी कहता है, जी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, क्या व्यर्थ की बातें हैं। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव a million books on it and it's good for plenty more, I wouldn't throw it away। टॉमी कहता है, दी क्या ये समय व्यर्थ करने की ये सब बातें हैं। जब आप किसी किताब के सहारे आप अंदर की तरफ जाते हो यानी कि पढ़ाई करते हो, तो जब तुम इस किताबों को फेंक देते हो, फेंक दोगे, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है। हमारा जो टेलीविज़न का स्क्रीन है वहाँ पे हजारों की संख्या में बहुत सारे किताबें पड़ी हुई हैं और हमें उसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम विद माइन सेड मार्जी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स as टॉमी had, he was 13। वो कहती है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, वह केवल 11 साल की थी और बहुत सारी जो किताबों की कहानियां हैं, कहानियों की जो किताबें हैं, उसे वह नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देख रखा था। क्योंकि वह मात्र 13 साल का बच्चा था। शी सेड, मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक, व्हाट इज अबाउट स्कूल। तो वो बोलती है किस चीज़ के बारे में है, तो ये स्कूल के बारे में है। तो थर्ड पॉइंट कहता है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी घृणित निगाहों से बोलती है, स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल आखिर स्कूल में रखा क्या है, विद्यालय यानी पाठशालाओं में रखा क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखने से पहले हम स्कूल के बारे में ही इसमें लिखा कि आखिर क्या हुआ करता होगा उस समय में। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। उसके थर्ड के सेकेंड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, लेकिन इस समय के दौर में उसे और उसकी घृणाएँ और बढ़ गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स्ट एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent the county inspector। मार्जी स्कूल से केवल घृणा पे घृणा इसलिए करती जा रही थी क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था यानी कि उसका जो यांत्रिक शिक्षक था, वह उसका टेस्ट लेते जा रहा था, टेस्ट पे टेस्ट, भूगोल में टेस्ट लेता था और उसमें वह बहुत ही खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, जिस तक कि उसकी माँ ने अपने सर को पीट न लिया उदासीनता से और उसके लिए उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। चलिए जानते हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर आखिर
था कैसा, क्या वो भी यांत्रिक मानव था या कुछ और। आइए चौथे नंबर पॉइंट को डील करते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took teacher apart. वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वह एक छोटा सा गोल मटोल आदमी जिसका चेहरा लाल था और उसके पास पूरी औजारों के बॉक्स थे जिसमें डायल्स और वायर्स लगे हुए थे। वह मार्जी को देख के उसके ऊपर हंसता है और उसे एक एप्पल, एक सेब खाने के लिए देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद से वह उसके शिक्षक को तोड़ के अलग अलग कर देता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. But he knew all. Sorry, he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी को यह पता नहीं था कि उसे फिर से कैसे असेंबल किया जा सकेगा, लेकिन वह इतना ही जानता था कि वह थोड़े से समय के बाद से फिर से उसी तरह बहुत ही बड़ा, काला और बहुत ही कुरूप तरह का, जिसके पास एक बड़ा सा स्क्रीन होगा, वह उसके ऊपर फिर से वही लेसन्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे और प्रश्न होंगे जो वो हम मुझसे हमेशा पूछा करेगा। डैट वाजंट सो बैड, क्या यह अच्छी बात नहीं थी? द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। और बहुत ही घृणा वाली बात मार्जी के लिए वह थी कि वह जब भी अपना होमवर्क पूरा करती थी तो उस टेस्ट पेपर को उसके स्लॉट के अंदर में रखना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code they made for her learn. When she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और ये सारी चीज़ें मार्जी को एक पंच कोड में के तहत करनी होती थी। ये जो पंच कोड होता था वो पुराने ज़माने में पंच कोडिंग का काम किया जाता था, जिसमें अभी के डेट में उस पर लोहे के ऊपर पंचिंग का काम किया जाता है, ठीक है। और ये जो पंच कोडिंग होता था वह पहले पेपर्स पे ही वो प्रचलन में आया करता था, लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन ये चूँकि 20वीं सदी की कहानी है, इसलिए यह जो राइटर हैं उतनी दिन तक जीवित न रह पाए, तो शायद अपने इमेजिनेशन और कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने यह पंच कोडिंग का महत्व दिखाया है इस लाइन में। वो क्या करती थी, अपना टेस्ट पेपर उस स्लॉट में रखती थी और बिना समय गंवाए ही वह जो मैकेनिकल टीचर था उसके जितने भी मार्क्स होते थे उसे कैलकुलेट करके तुरंत बता देता था कि इतने मार्क्स आए हैं। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट को डील करते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज head. He said to her mother, "It's not a little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर रहता है उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है जब वह काम अपना ख़त्म कर लिया होता है और वह मार्जी के सिर को थपथपाता है। पैट मतलब होता है थपथपाना और पैटेड मीन्स थपथपाया। और उसके बाद वह उसकी माँ से कहता है, वह छोटी सी बच्चे की फॉल्ट नहीं है मिसेज जोन्स, वह उस लड़की की फॉल्ट यानी कि उसकी गलती नहीं है। मुझे हिसाब से जो भूगोल का सेक्टर था वह बहुत जल्दी
आगे बढ़ गया था। और ऐसा चीज़ कभी कभी हो जाता है क्योंकि यंत्र यंत्र है ना और मशीन है, मशीन में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो थोड़ा बहुत सेशन उसका आगे बढ़ गया था। और अब घबराने की बात नहीं है, मैंने उसे धीमा कर दिया है जो कि 10 साल के लेवल के ऊपर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और जो भी इसका प्रगति करने की जो भी बात है बहुत संतुष्टि से भरी हुई है, संतुष्टिदायक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसके बाद से वह फिर से मार्जी का सर थपथपाता है। मार्जीज वर डिसअपॉइंटेड, और इससे मार्जी थोड़ी सी नाराज हो जाती है। सी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वह यही सोच रही थी कि वह उस शिक्षक को हटा देगी या फिर वो हटा के ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, जैसे जिस तरह से उन्होंने एक बार टॉमी के शिक्षक को हटा दिया था 1 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वह बहुत ही नहीं, पूरा का पूरा खाली हो चुका था। सो टॉमी सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तब आखिर क्यों लोग स्कूल के बारे में लिखेंगे। उसके बाद से छठे लाइन में छठे पॉइंट को हम लोग जा रहे हैं डील करने। इस पॉइंट में देखते हैं कि टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज, और वह उसके ऊपर बहुत ही तीखे नज़रों से देखता है, तिरछी नज़रों से देखता है। और उसके बाद उससे कहता है, क्या कहता है? बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। एकदम ए मूर्ख लड़की, यह हमारे तरह के स्कूल की बात नहीं हो रही है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने ज़माने में जो स्कूल हुआ करते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, है ना, 100 साल पीछे, हज़ारों साल पीछे के जो भी स्कूल्स हुए करते थे उनके बारे में ये है कि उस समय के स्कूल कैसे चलते थे। और आज के ज़माने में हम लोग जो स्क्रीन पे पढ़ते थे वैसे नहीं हैं, और वहाँ पे वो लोग कैसे रहते थे उनके बारे में है। ही एडेड लफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी अगो, मतलब शताब्दियों पहले। ठीक है। मार्जी वाज हर्ट, तो मार्जी को अंदर से छोटा महसूस होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मुझे ये तो पता नहीं कि यह किस तरह के स्कूल के बारे में बात हो रही है जो कि पहले हुआ करते होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वह कुछ समय के लिए उस बुक को अपने कंधे पे लेके रख के पढ़ती है। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, और कोई बात नहीं, उनके पास तो कोई शिक्षक होता होगा ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। ना, टीचर तो है लेकिन वह आदमी है, ना कि कोई यांत्रिक मानव है। ए मैन, हाउ कुड बी ए मैन बी ए टीचर, कुड अ मैन बी ए टीचर, आखिर एक आदमी एक शिक्षक कैसे हो सकता है। विल जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वह केवल इतना ही बताता था, वह लड़कों और लड़कियों को वस्तुएं प्रदान करता था और उन्हें होमवर्क भी देता था, गृह कार्य देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी बहुत स्मार्ट, कहीं ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं था। श्योर ही इज, है ना, ऐसा होता होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा, वह उतना ही जानते हैं जितना कि ऑलमोस्ट मैं, है ना। बेचा का अर्थ यहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड में हो गया है बेट यू, इन फास्ट स्पीच आई एम
श्योर इसका मतलब कि मैं पूरे का पूरा कंफर्म हूँ, है ना, ऐसा होता था। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, है ना। और लेकिन मार्जी जो था वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। शी सेड, वह कहती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं एक अजनबी आदमी को नहीं चाहूँगी कि वह मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाई कराए। तो इसके ऊपर टॉमी को टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्ची। टॉमी को बहुत ही कसके हंसी आ गई। वह उसे कहता है, तुम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, वो जो शिक्षक है वो घर में नहीं रहा करता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल तरह की भवनें होती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जो भी बच्चे थे वो एकदम बराबर से सेम चीज़ों को एक ही चीज़ों को सीखा करते थे। श्योर इफ दे वेयर सेम एज, है ना। ऐसा हो सकता था, क्यों? क्योंकि उस समय वह एक ही उम्र के होते होंगे। अब पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 में उसके अंदर थोड़ा प्रश्न और गहराता जा रहा है, क्योंकि उसमें जानने की जो उत्सुकताएं हैं वह बढ़ती जा रही हैं। और इस तरह की उत्सुकताओं को जो बढ़ने का लेवल होता है उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। और क्लाइमेक्स का अर्थ होता है इट इज़ ए टाइप ऑफ लैडर। लैडर मीन्स क्या? सीढ़ी की तरह, है ना। 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 5th स्टेप। और इस तरह से जो ऊपर की तरफ बढ़ने का जो क्लाइमेक्स का प्रपोजल है वह इस राइटर इसाक एजिमोव ने बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है। ठीक है, अब हम 8वें नंबर को डील करने जा रहे हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ईच ऑफ द बॉय एंड गर्ल। इट टीचेज दैट किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो यही कहा करती है कि जो भी शिक्षक होते हैं उनका जो माइंड है उन बच्चों के साथ मिलाया जाता है जो पढ़ाया करते हैं। और हर तरह के किड के पास हर तरह के बच्चे अलग अलग तरह से पढ़ाए जाते हैं। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू दैट दैट वे देन, है ना। ज़रूर होता होगा, वह ऐसा नहीं करते तो कैसे करेंगे। इफ़ यू डोंट लाइक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो यह किताब तुम नहीं पढ़ो, है ना। वह मार्जी इसे बोलती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उस विचित्र पाठशालाओं के बारे में जानना चाहती है और इसीलिए उस किताब को पढ़ना भी चाहती है। दे वेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, है ना। वह केवल अभी आधा ही ख़त्म हुआ रहता है तभी मार्जी की माँ चिल्लाती है, मार्जी स्कूल, स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुक अप, नॉट येट ममा, वो कहते अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स, और मिसेज जोन्स कहती है नहीं अभी चलो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब टॉमी का भी समय हो गया है, दोनों तैयार हो जाओ चलो। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी अब टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल, क्या अपने स्कूल के ख़त्म होने के बाद तुम्हारी इस किताब को थोड़े समय के लिए मैं पढ़ सकती हूँ? तो ये मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली, हाँ 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 क्यों नहीं, वह कहता है बिना उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर, है ना। उसके बाद से हम 10th में देखते हैं, सॉरी 9th वाले जो पॉइंट है उसमें कहता है मे बी, हाँ हाँ क्यों नहीं, नज़रअंदाज करते हुए मार्जी को वह कह तो देता है। एंड ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस किताब को अपने आँखों में दबाए
वह सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। उसके बाद से मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मर्जी का जो स्कूल रूम है उसके बेडरूम के ठीक बगल में ही है, और जहाँ पे उसका यांत्रिक टीचर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। वह हमेशा एक ही समय पे, मतलब जिस समय पे पहले ऑन हुआ करता होगा, यानी कि जो भी टाइमिंग होगी उसकी, है ना, और हर दिन उसी समय पर ऑन होता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। संडे और यानी शनिवार और रविवार को छोड़ के। बिकॉज हर मदर से द लिटिल गर्ल्स आफ्टर लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। क्योंकि उसकी छोटी माँ का मानना है कि जो छोटी बच्चियाँ हैं वह निरंतर उसी समय पर अगर पढ़ती रहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लेती हैं। The screen was lit up and said, "Today's arithmetic lesson and is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." और उसके स्क्रीन जल उठती है और उसके स्क्रीन पर ये लिखा होता है कि आज का जो अर्थमेटिक का लेसन है वह चलेगा, और उसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर हम जोड़ का कार्य करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। कृपया अपना कल का जो गृह कार्य है उसे इस प्रॉपर स्लॉट में, उस जगह में दे दे। अब नंबर 10, मार्जी डिड सो विद अ साई। शी वॉज thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 by 2 and 1 by 4. Or so Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. इन दैट 10th पॉइंट हम यह देखते हैं कि मार्जी तो ऐसा करती है थोड़ी सी आह भरते हुए, लेकिन वह अभी भी अपने दादाओं के बारे में सोचती रहती है कि जब वह छोटे बच्चे हुआ करते थे तो कितना अच्छा हुआ करता था। हर एक के पास, है ना, ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जब भी स्कूल के यानी कि विद्यालय के प्रांगण में बहुत सारे आस पड़ोस के बच्चे आते थे, खेलते थे, हंसते थे, एक साथ शोरगुल करते थे, जब वो एक साथ बैठे होते थे उसी के बारे में वह केवल सोच रही होती है। वह एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ स्कूल से घर आते थे, और इस तरह से पूरा दिन समाप्त हो जाता था। इसी के बारे में वो केवल सोच रही होती है। दे लर्न द सेम थिंग्स। वह लोग एक ही तरह की चीज़ों को सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर। और एक दूसरे के गृह कार्य में भी वह एक दूसरे की मदद किया करते थे और उसके बारे में बात करते थे। और ऐसा वो सोचती हैं, तभी वहाँ का जो मैकेनिकल टीचर है वह अपने स्क्रीन पे 1/2 एंड 1/4 का एडिशन फ्रैक्शन सिखा रहा होता है। लेकिन अभी भी मार्जी उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रही होती है जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उस प्राचीन दिनों में। और
वह किस तरह से मनोरंजन किया करते थे, केवल इसी के बारे में सोचा करते थे। और इसी के साथ हमारा ये जो किताब होता है वो समाप्त होता है।